Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is math, and we are discussing chapter number 3, multiplication, and today I am conducting session number 3. So in our earlier sessions, that is session number 1 and 2, we have already discussed the revision exercise given in your textbook page number 111. तो पेज नंबर 111 में जो आपको रिवीजन एक्सरसाइज दी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. वी हैव कंप्लीटेड डिस्कसिंग दैट. तो आज आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हमें याद रखना होता है और उसके बेसिस पर मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी होती है. So there are basically 6 properties of multiplication. I am just reading all the 6 properties and after that one by one property I will explain you. अब ये जो properties of multiplication है वो आपकी बुक में पेज नंबर 112 में दी गई है. तो इन properties को आपको अपनी CW में भी लिखना है. You have to copy that full paragraph of properties of multiplication in your CW book. That will be the only homework for today. वही आपका homework है कि आपको properties of multiplication CW में लिखना है. So now I am starting this session by reading properties of multiplication. There are 6 properties of multiplication. First one, changing the order of the factor does not affect the product. This I will explain to you one by one. तो ये first property थी. Second property, the product of any number and 1 is the number itself. Product of any number and 1 is the number itself. Next, the product of any number and 0 is 0. Next, number 4. The product of any number and an even number is even. Next, number 5. The product of 2 odd numbers is always odd. And last one, the product of 3 numbers is always the same irrespective of the order in which they are multiplied. तो ये 6 properties हैं multiplication की. Now I am going to explain you each property in detail with example. आप अपनी CW में जब इन properties को लिखोगे तो टेक्स्ट बुक में जो examples दिए हैं उन्हीं को कॉपी करना है. मैं अपनी CW का एक PDF आपको भेज रही हूँ. So you will be not get confused that what are you going to write and how are you going to write. आपको जो मैंने PDF में मेरी बुक में लिखकर भेजा है वही आपको अपनी CW में भी लिखना है. So now starting with the first property. Sorry, changing the order of the factors does not affect the product. That is the first property. Let me write it down for you on the board. Number 1 is changing the order of the factors does not affect the product. पहली चीज फैक्टर्स का मतलब क्या है, दूसरी चीज प्रोडक्ट का मतलब क्या है. मल्टीप्लिकेशन में ये 2 चीज आपको याद रखनी है. ओके, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्रोडक्ट्स, ये सारे टर्म्स आते हैं मैथ्स में तो इनका मतलब पता होना चाहिए. तो फैक्टर्स, प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है. ओके, नाउ यहां पर मैं लिख रही हूं फॉर एग्जाम्पल 2 into 4.
2 into 4, आंसर क्या आएगा? 2 4s are 8. Similarly, if you write 4 into 2, answer is again 8. 2 4s are भी 8 है, 4 2s are भी 8 ही है. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी ऐसा ही दिया है. 48 into 23, 48 into 23, इसका आंसर आपको ऑलरेडी दिया है 1104. अगर इसी का उल्टा आप अगर कर दो, मतलब कि इस नंबर को यहाँ ले जाओ और इस नंबर को यहाँ, तो क्या होगा? 23 into 48, तो भी आंसर सेम ही है 1108, सॉरी 1104, करेक्ट, 1104. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 48 into 23 हो, इट इज इक्वल टू 23 into 48. 48 into 23 ये इक्वल है 23 into 48 को. क्यों? क्योंकि दोनों के आंसर्स तो 1104 ही आता है. समझ में आ गया? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, मतलब ये जो है ये है फैक्टर्स. अब इन फैक्टर्स के ऑर्डर को, मतलब कि 2 को 4 की जगह पर लिख दिया और 4 को 2 की जगह पर लिख दिया, तो उससे प्रोडक्ट में, मतलब कि ये है आंसर, ये प्रोडक्ट. प्रोडक्ट सेम ही रहेगा. फैक्टर्स में अगर फैक्टर्स के ऑर्डर, मतलब उसकी जगह को चेंज कर दोगे, फिर भी प्रोडक्ट तो वही आएगा. आप 2 into 4 लिखो या 4 into 2 लिखो, प्रोडक्ट विल रिमेन ऑलवेज द सेम. गॉट इट? जैसे यही हमने एडिशन वाले सब चैप्टर में भी पढ़ा था कि एडिशन में इफ यू इवन चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर, द टोटल और द सम विल रिमेन सेम. पढ़ा था ना? 2 + 4 करो 6, 4 + 2 करो तो भी 6. सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी ये एक पॉइंट है कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट. उससे इस प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं होता है. ऑर्डर अगर आप ये लिखो 2 into 4 या 4 into 2, उससे प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता है. हाँ, नंबर सेम होने चाहिए. यहाँ 2 into 4 है तो यहाँ भी 4 into 2 ही चाहिए. उसके अलावा दूसरा नंबर लोगे तो अगेन आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. सो नंबर विल रिमेन सेम. ओके, फैक्टर्स आर सेम, बट द ऑर्डर इन विच वी आर प्लेसिंग द फैक्टर्स, इफ यू चेंज द ऑर्डर, देन प्रोडक्ट विल नॉट गेट एनी इफेक्ट. उसमें कोई असर नहीं होगा. Clear? So this was the first property. This was the first property. Now I hope this property is clear to you. आप अपने आप घर पर इस प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल्स रफ बुक में ट्राई कीजिएगा कि आपको सिमिलर आंसर मिलते हैं या नहीं. जैसे मैंने यहाँ पर 2 into 4, 4 into 2 किया, तो आप भी एक बार अपने आप ट्राई कीजिएगा कि कोई और नंबर है तो उसमें सेम चीज होती है या नहीं होती है. ओके, सो यू विल ट्राई दैट. नाउ सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1. सेकेंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 is the number itself. यहां पर एग्जाम्पल दिया है 2687 into 1, तो आंसर इज अगेन 2687. ये आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, बुक के एग्जाम्पल में. बुक के एग्जाम्पल में क्या दिया है?
ये नंबर। इसका मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? एनी नंबर एंड वन। एनी नंबर के साथ वन अगर आप लेते हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के साथ अगर आप वन लेते हो मल्टीप्लिकेशन में तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने 999 लिया इंटू 1, तो आंसर में अगेन 999 ही आएगा। जैसे आप 2 1 सा 2 करते हो ना, 12 1 सा 12। तो इसी तरह किसी भी नंबर के साथ अगर आप 1 लेते हो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय द 1, द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। ये जो नंबर, एनी नंबर में जो नंबर आप लोगे ना, वही नंबर आंसर में मिल जाएगा। क्लियर? सो नाउ I have completed explaining 2 properties and I am hoping कि you are also clear with the concept कि इन 2 properties में मैंने क्या समझाया। Now next, number 3, the product of any number and 0. The product of any number and 0 is 0। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 4839 इंटू 0, तो आंसर इज 0। मतलब के प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? एनी नंबर एंड 0। कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 786, एनी नंबर एंड 0, तो उसके साथ अगर 0 लेते हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। जैसे कि 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, बट अगर 2 0 ज़ा लेते हो तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि 2 1 ज़ा 2 है, 2 0 ज़ा कुछ होगा? नहीं होगा, तो ये 0 ही रहेगा। तो किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में क्या आएगा? 0। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, वी हैव डिस्कस्ड 3 प्रॉपर्टीज हियर। 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। सो रिमेनिंग आर 3 और 3 है। नाउ कमिंग टू द 4th property, the product of any number and an even number is even। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब आंसर, किसका आंसर? एनी नंबर एंड एन इवन नंबर। कोई भी नंबर ले लो, यहां पर उन्होंने दिया है 413 इंटू इवन नंबर में इन्होंने दिया है बुक में 8, तो उसका आंसर क्या आएगा? 8 3 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 and 10, 0 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33। तो ये नंबर कौन सा है? प्रोडक्ट में क्या आएगा? द नंबर इन विच इज हैविंग इवन नंबर इन वंस प्लेस।
कोई भी नंबर जिसके वंस के प्लेस में इवन नंबर है, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8. So any number ending with 0, 2, 4, 6, 8 तो वो इवन नंबर होते हैं. तो इधर 3, 3 है वो ऑड है, बट ये कंसिडर नहीं करना है. लास्ट में वंस की जगह पर कौन सा नंबर आया? इवन है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए 3 है वो ऑड है. इस ऑड नंबर को इस इवन के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, द आंसर इज इवन. आंसर में क्या आएगा? इवन. यही बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड एन इवन नंबर इज इवन. किसी भी नंबर के साथ आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ कोई भी नंबर ले लो, उसके साथ यहाँ इवन नंबर अगर लगाते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन ही आएगा. ये बड़ा वाला एग्जाम्पल है. छोटे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो यू कैन टेक हियर 7. ये ऑड नंबर है. 7 के साथ अगर आप यहाँ इवन नंबर 2 लेते हो, इवन नंबर 2 लिया तो आंसर क्या आएगा? 7 2 जा 14. तो ये 14 में 4 आया तो ये 14 इवन नंबर हुआ ना. तो किसी भी नंबर के साथ इवन नंबर लेते हो तो उसका आंसर क्या आएगा? इवन आएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4 is already over. We have discussed. Now property number 5. Property number 5 में यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसे I am going to explain. Okay. So now next, the product of two odd numbers is always odd. ओके. प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर मतलब कि यहाँ एग्जाम्पल ले लो 3 एंड अगेन 7 लेते हैं. 3 एंड 7 दोनों ऑड नंबर्स है ना. करेक्ट. 3 एंड 7 दोनों ऑड नंबर्स है. तो इन दो ऑड नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 7 21. तो इधर 1 आया तो ये एंडिंग, एनी नंबर एंडिंग और हैविंग ऑड नंबर इन वंस प्लेस, तो ये पूरा आंसर क्या हुआ? पूरा आंसर ऑड है. क्या है ये? सो ऑड इंटू ऑड, आंसर इज ऑड. समझ गए? ऑड को अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर ऑड नंबर ही आएगा. यहां पर एग्जाम्पल में आपको दिया है 175 इंटू 9. करेक्ट. 175 इंटू 9. सो 9 5s are 45, 5 4 carry, 9 5s are 45, 4 carry, 9 7s are 35 plus 4. 9 7s are 35. Sorry, 9 7s are is 63. 63 plus 4, 64, 65, 66, 67. 9 1s are 9. 9 plus 6 is 50. 1575.
Clear? 9 5s are 45, 4, 5 here. So 9 7s are 63, 63 plus 4, 67. So 6 here, 7 here. Then 9 1s are 9, 9 plus 6, 15. So again यहाँ देखो odd है, odd, तो आंसर में भी ये 5 क्या है? Odd. So odd multiplied by odd, the product is again odd. So this was the property number 5. We have already discussed property 1, 2, 3, 4 and 5. Okay? Odd के साथ even को अगर multiply करोगे तो आंसर इवन आएगा, बट ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड आएगा. लास्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स is always the same irrespective of the order in which they are multiplied. This is somewhat similar to the first property. First property में हमने क्या किया था? Changing the order of the factor does not affect the product. तो यहाँ भी थोड़ा ऐसा ही है, बट 2 नहीं है, यहाँ 3 नंबर्स दिए हैं. द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? 3 नंबर्स इज ऑलवेज द सेम. 3 नंबर आप लोगे तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज सेम रहेगा. कब सेम रहेगा? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर इन विच दे आर प्लेस. इर्रेस्पेक्टिव मतलब इस पर ध्यान नहीं देना है कि उन्हें किस ऑर्डर में प्लेस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 into 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 3s are 6 into 4, 6 4s are 24. क्लियर? सो अब इन्हीं नंबर्स को मैं अलग अलग पोजीशन पर प्लेस करती हूँ. 3 into 4 into 2 ऐसे मैंने अगर लिया तो क्या होगा? 3 4s are 12 into 2, तो अब इसका आंसर 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो आंसर तो सेम ही आएगा. आंसर सेम ही आया, irrespective of the place or irrespective of the order in which they are multiplied. किसी भी ऑर्डर में आप ले लो नंबर को, उसका प्रोडक्ट जो है विल नॉट चेंज. समझ गए? यहां पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल 21 into 43 into 12 is equal to 903. Correct? 21 into 43 into 12, तो उसका आंसर 903 into 12, तो आंसर इज 10836. मतलब यहां पहले इन्होंने ये मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर ये आएगा, फिर इंटू 12, तो उसका आंसर ये आया. अब इन्हीं नंबर्स को, दैट इज 12 into 43 into 12, सॉरी 21 into 43 into 12,
इन नंबर्स के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है, देखिए नीचे, फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर विल रिमेन द सेम। ओके, तो आंसर सेम ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में आप 3 डिजिट्स अगर लेते हो और 3 में से तीनों के प्लेसेस अगर इंटरचेंज कर दो तो भी प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, प्रोडक्ट तो वही रहेगा। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनिंग ऑल द 6 प्रॉपर्टीज। यहाँ मैंने इन 6 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया है। लेट मी वंस अगेन रीड दिस फॉर यू। प्रॉपर्टी नंबर 1, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। 2 नंबर्स लेते हो, दोनों के प्लेस इंटरचेंज कर दो, फिर भी प्रोडक्ट चेंज होगा नहीं। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के साथ 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट में जो नंबर आप लेते हो वो सेम आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट मतलब के आंसर 0 ही रहेगा। जैसे किसी भी नंबर के साथ 1 लेते हो तो आंसर में वो नंबर ही मिलेगा, सेम नंबर जो आपने लिया है, करेक्ट। वैसे ही किसी भी नंबर के साथ 0 लोगे तो आंसर 0 ही होगा, तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया। आप कभी कभी एकदम घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, कोई ये दीदी ने कितना बड़ा सम दे दिया है, करेक्ट। तो तभी यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को यूज करोगे, याद करोगे तो आसानी से आपको आंसर्स आ जाएंगे। कभी कभी कुछ ज्यादा होता नहीं है। यहाँ पर मैं अगर ये क्वेश्चन लिखूं 2 इंटू 44 इंटू 678 इंटू 0 इंटू 120, तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करो तो आप घबरा जाओगे। ज्यादा कुछ करना है, ये सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई करो तो इसका जो भी आंसर आएगा, एनी आंसर, फॉर एग्जाम्पल सम आंसर यू गॉट, इंटू 0 कर दिया आपने, तो किसी भी नंबर के साथ इंटू 0 कर दिया तो इसका आंसर अब क्या आएगा, 0। उसको अगेन इंटू 120 करो तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस सम को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में एक 0 आ गया तो पूरे के पूरे सम का आंसर 0 ही आ जाएगा। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड एन इवन नंबर इज इवन। किसी भी नंबर के साथ, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, उसके साथ दूसरा नंबर अगर इवन नंबर लेते हो, करेक्ट, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उन 2 फैक्टर्स में से एक इवन है एक ऑड है, करेक्ट, या एक दोनों इवन है, तो क्या होगा, आंसर में इवन नंबर ही आएगा। इवन ऑड लोगे तो भी इवन आएगा और इवन इवन लोगे तो भी आंसर इवन ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 numbers and an even number, product of any number and an even number is even. Then product of 2 odd number is always odd. प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड। 2 ऑड नंबर अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑड। समझ गए? मतलब के यहां पर इवन इंटू इवन करोगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड इंटू इवन करोगे तो भी इवन आएगा, बट ऑड इंटू ऑड करोगे तो आंसर ऑड आएगा। ओके, ई मीन्स इवन, ओ मीन्स ऑड। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज ऑलवेज द सेम। 3 नंबर्स अगर आप लेते हो और एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट सेम रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड।
यहाँ पर उसके नंबर, उस नंबर को आपने किस ऑर्डर में प्लेस किया है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी ऑर्डर में उन नंबर्स को ले लो मगर उसके प्रोडक्ट मतलब कि उसका आंसर तो सेम ही रहेगा। So here I have completed explaining the properties of multiplication. Now in our next session I will be explaining you the multiplication of large numbers. Multiplication of large numbers जो है उसमें हम नेक्स्ट सेशन में इस जो टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे और वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स. So I hope the properties of multiplication are clear to you and I hope you will write all these properties which are given in your textbook in your CW book without fail. Okay, I am sending a PDF in which I have written these properties in my book. Please write them in your books also. Okay, bye for now.